محترم حاضرین سامعین و ناظرین، معہد الہدیٰ الاسلامی عبداللہ نگر کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک حساس موضوع جہیز اور ہمارا معاشرہ۔ جہیز اور اس کی خرابی نے پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جہیز کی خلالت نے آج نوجوان لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جہیز کے خاطر موت کے پھندے کو چومنے پر مجبور ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج کے مناقشے کا جو عنوان قائم کیا گیا ہے وہ ہے کیا اسلام میں جہیز کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی لوگ ایک طرف ثابت کریں گے کہ جہیز کا لینا جائز نہیں ہے، اور ایک طرف کے لوگ یہ ثابت کریں گے کہ جہیز کا لینا جائز ہے۔ تو میں سب سے پہلے اجل بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ جہیز کے بارے میں کچھ بتایا۔ معزز سامعین اور میرے مناقشے کے سنی شریک ساتھیوں اور دوستوں، آج کے اس مناقشے کا عنوان ہے کہ کیا اسلام میں جہیز دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیری تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، گر نہیں ہے جستجو کے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر۔ محترم سامعین، اور آج کے اس شادی کے معاملے میں تلک اور جہیز کا لینا جائز ہے یا نہیں، جہاں تک سوال ہے تو میں اتنا کہوں گا کہ خدا را اسلام کے چہرے کو مت بگاڑو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرے اور اپنے بھائیوں کے لیے نہ پسند کرے۔ میرے بھائیوں، آپ کی بہن گھر میں پڑی رہی جہیز کی خاطر اور آپ مستیوں میں چور رہی، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ میرے بھائیوں، میں تو کہتا ہوں اسلام کے اندر شادی کے معاملے میں کسی طرح کا لین دین کرنا بالکل حرام ہے، حرام۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا، یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ میاں اجمل صاحب، جیسا دودھ ویسا دہی، تم بھی آئے ہو اپنے دہی کو میٹھا منوانے اور ہمیں بدھو بنانے، نہ گلے گی تمہاری دال نہ میٹھا ہوگا تمہارا دہی۔ ہم جہیز لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے، اور ہم جہیز دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اگر شادی میں ہم جہیز نہیں لیں گے تو اپنے پرائے سب ہم پر ہنسیں گے اور چٹکیاں لینی شروع کر دیں گے۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تلک لینا حرام ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تب اس کے بعد ہم پھر سوچیں گے۔ اسلام نے بخشی تھی آسان نہیں حیات، اسلام نے بخشی تھی آسان یہ حیات، دنیا پرست ذہنوں نے مشکل بنا دیا۔ میرے دوست، میری فریاد کو سن، اگر تم واقعی میں مسلمان ہو، مسلمان کی اولاد ہو اور اللہ کو ایک مانتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو، کیونکہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ صلح رحمی کا برتاؤ کرے، پھر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچے۔ جس وقت آپ اپنے لخت جگر کو لے کر دم بناتا تالیاں بجا بجا کر ماروتی میں سوار ہو کر دھوم مچاتے ہوئے لڑکی کے وہاں پہنچیں گے، اور لڑکی والے بیچارے شادی کے پھر مسرت موقع پر بھی غم اندیز کے دریا میں زم ہوتا ہوں گے۔ اور یہ میرا شاعر سن لیجئے، ماں باپ لڑکیوں کو نہ کہتے کہ بوجھ ہیں، ماں باپ لڑکیوں کو نہ کہتے کہ بوجھ ہیں، ہوتی جو شادیوں میں سہولت جہیز کی۔ میرے دوست، ناجائز احکام کی کتنی دلیلیں لوگے، ابھی موقع ہے سدھر جاؤ ورنہ تمہاری داستاں تک ہوگی داستانوں میں۔ اما بھائی عبدالعظیم،
ये दुख भरी कहानी अपने ही पास रखो और दर्द भरी दास्तान सुनाने की चंदा जरूरत नहीं है। अरे जनाब, आपको मालूम नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक शादी में एक गद्दा, छागल और चक्की दिया था। वो जहेज नहीं था तो और क्या था? अरे जनाब, आप लोग हम सीधे साधे आवाम को क्यों बेवकूफ बनाते हो? अल्लाह ने मुझे 7 लड़कों से नवाजा है, मैं सबकी शादी में जहेज लूंगा, चाहे दुनिया जो भी कर ले, मुझे जहेज के लेने से कोई रोक नहीं सकता। जी साहब, आपके अफकार काबिले रश्क हैं। अभी तो आपको मजा ही मजा है, क्योंकि अल्लाह ने आपको 7 लड़कों से नवाजा है। जब आपके बेटे के साथ बेटियां होंगी तब पता चलेगा कि मजलूम की आंसुओं की क्या अहमियत है। उस वक्त आपके पाजामे ढील हो जाएंगे, आंसू एक नहीं, कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अना भाई अब्दुल गफूर साहब, मेरे पास ना कोई लड़की है और ना ही पाजामा, और ना ही परेशानी आएगी और ना ही पाजामा ढील। अरे जनाब, ये तो मजाक हो गया। अरे मजे की बात तो सुनो। मैं रोजाना ख्वाब देखता हूँ कि मेरे पास 7 गाड़ियां होंगी और 7 वॉशिंग मशीन और वाटर कूलर मशीन होंगी, और मैं ऐश और आराम की जिंदगी गुजारूंगा। जब मेरे बेटे की बेटी होगी तो हम अपना सोच विचार कर लेंगे। गैरों की देखा देखी मुसलमान कौम में जोरों से चल पड़ी है रवायत जहेज की। हिंदू मजहब में वालिदैन की विरासत में लड़कियों का कोई हक नहीं होता, चुनांचे ये जहेज की रस्म हिंदुओं ने निकाली है और शादियों के मौकों पर लड़कियों से जहेज लेते हैं। लेकिन मुस्लिम मुआशरा में वालिदैन के गुजरने के बाद विरासत में हक दिया जाता है। ये जहेज कहाँ से पैदा होगी और कहाँ से जायज करार पाया? मुझे तो अफसोस ही नहीं, बल्कि ऐसे मुसलमानों पर गैरों का धब्बा है, धब्बा। ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद के मिस्दाक है। मैं हाशिम से इतना कहूंगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जहेज दिया है, तो हमें जहेज लेने और देने में क्या हर्ज और क्या नुकसान है? अरे हम मालदार लोग हैं और मालदारी का अदर लोगों में छोड़ना चाहिए, क्योंकि फकीरी तो अलग चीज है और मालदारी तो एक अदीम दौलत है। देखिए हजरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सामान हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्या, वो सामान जहेज नहीं था, बल्कि सामान जरूर। दुनिया जहेज का ना तो वाजिब ना कोई फर्ज, मजहब में कुछ नहीं, हकीकत जहेज फर्ज है, ना वाजिब ना कोई सुन्नत है। जहेज नाम है सुन्नत की रस्म बिदअत। अगर जहेज देना फर्ज वाजिब सुन्नत ये नफल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम साहबजादी को जहेज एक को देते दूसरे को ना देते, ये तो नाइंसाफी हो जाता। नाऊज़ बिल्लाह, ऐसी बातें करना बिल्कुल बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का फल जहन्नम है। आप ये बताएं कि कहाँ तक जहेज का लेना सही है या कुछ गुंजाइश है क्या? अगर नहीं है तो साफ क्लियर कर दीजिए, 2 मिनट 3 मिनट में क्लियर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जहेज का लेना कहाँ तक जायज है? कुछ लोग समझते हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करेंगे, गलत है तो गलत। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुलवामा वाला लेकर आते हैं। इन्ना आज़म निकाह बरका व ऐसरहु मऊना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। मुहतरम सामिईन, अजीज तलबा व तालिबात, अभी आपने हमारे इन नौनिहालों से एक मुनाकशा समाअत फरमाया। उन्वान था जहेज लेना जायज या नाजायज।
कुछ लोगों ने साबित किया कि लेना जायज नहीं है, और कुछ लोगों ने ये साबित करके दिखा कि जहेज लेना जायज। शरीयत में जिस चीज का जवाज नहीं है या शरीयत में जिस चीज का लेन देन हराम है, वो दलील के तौर पर अकली घोड़े दौड़ाते हैं। उसके पास कोई दलील नहीं होती, कुरान और हदीस से उसके पास कोई हुज्जत नहीं होती है। यूं बेकार सी बातें करके लोगों को ये मनवाना चाहता है या अपने सामने वालों को खामोश करना चाहता है कि जहेज का लेना जायज, और दलील के तौर पर ये पेश करते हैं कि अल्लाह के नबी ने हजरत अली को जहेज में कुछ सामान दिया था। वो जहेज नहीं था। जिस तरह आज जहेज का रिवाज चल पड़ा है, लोग देते हैं और लेते हैं, ये वो सूरत नहीं थी जो अल्लाह के नबी ने दिया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन ही से अल्लाह के नबी की खिदमत में रहकर उन्होंने परवरिश पाई, रहा, खाया, पिया, बड़ा हुआ। अल्लाह के नबी ने उनका देख रेख किया और अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा से उनका निकाह कराया। तो चूंकि जब शादी कराया और आपकी रिहाइश में वो थे, तो उनका घर बसाना जरूरी था। इसलिए घर बसाने के लिए कुछ जरूरी सामान जिसका होना लाजमी था, वो चंद सामान आपने दिया था। एक चक्की थी और एक गद्दा था और एक छागल, जिसको हम लोग घड़ा कहते हैं, भिश्ती, पानी लाने वाला। ये 2-3 सामान आपने दिया था जो आपको देना ही था। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हजरत अली को जहेज दिया था, आप भी चक्की दीजिए, गद्दा दीजिए, घड़ा दीजिए, तो फिर आप लेने के लिए वो दलील को, बेजा दलील को क्यों पेश करना चाहते हैं? शरीयत के अंदर बेजा दलील की कोई अहमियत नहीं होती, कोई हकीकत नहीं होती। और शरीयत के अंदर जहेज के नाम पर अगर आपने एक सुई भी लिया है तो हराम है। एक सुई की बात कर रहा हूं, मोटरसाइकिल और साइकिल की बात नहीं। जहेज के नाम पर एक सुई भी अगर आपने मांगा, मुतालबा किया, ये नाजायज, शरीयत के अंदर इसकी कोई जवाज नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना आज़मा निकाह बरका व ऐसरहु मऊना। सबसे अच्छी शादी, सबसे बरकत वाली शादी वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा कम खर्च हो। लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए या दिखावा कह लीजिए, लोग कर्ज करके भी बड़े धुआंधार की शादी करते हैं 50 की बारात में, जबकि शरीयत के अंदर इतनी कसरत से बाराती की कोई जवाज नहीं, कोई सूरत नहीं है। ये दिन दहाड़े लड़कियों के घर में डाका डालने के मानंद है, जो लोग दिन दहाड़े पुलवामा वाला एक्शन देख के जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। शरीयत इस्लामिया के अंदर जिस चीज का रिवाज नहीं है, अगर हमने उसको किया वो बिदात है, वो मरदूद है, वो नाजायज है, वो हराम है। लिहाजा जहेज का लेन देन शरीयत के अंदर जायज नहीं, ये हराम है। हम इस चीज से बचें, तौबा करें और आइंदा ना लेने का हद करें। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।